हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेज। आज हम आपको +1 में आगे सिलेबस कर रहे हैं। चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शंस इज गोइंग ऑन। ये चल रहा है हमारा चैप्टर 10। अब इसमें कॉनिक सेक्शन में हमने आपको ये लेक्चर आपके इसमें लेक्चर हो गए आपके 6। ओके, अब ये 7th लेक्चर होगा। ओके, this is the 7th lecture on this chapter. Okay, now in 6th lecture exercise 10.1 10.2 done। कॉनिक सेक्शंस हमारे 4 हैं: सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। हमने सर्कल 10.1 एक्सरसाइज डन, इक्वेशन ऑफ सर्कल एवरीथिंग डन, इंट्रोडक्शन डन, कॉनिक सेक्शंस डन। देन सेकंड पैराबोला आल्सो डन, एवरी डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, एवरीथिंग डन। सर्कल में इक्वेशन ऑफ सर्कल, प्रूफ ऑफ द इक्वेशन ऑफ ऑल दीज बोथ सर्कल एंड पैराबोला डन। तो देन exercise questions also done, 10.1 10.2 parabola completed done. Now today we have to go forward, आगे करना है हमें। आगे थर्ड जो फिगर है, थर्ड जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? इलिप्स। अब which type of figure is ellipse? Okay, definition of the ellipse. Today we have to do this. Now continuous in this lecture 7. Ellipse. What is ellipse? The set of all points in a plane. The set of all points in a plane. अब कैसे set of all point? इसको हम locus भी कह सकते हैं। The locus of a moving point. Same meaning I told you. The locus of a moving point or the set of all the points. अब what is the locus? Locus का meaning traced path of a moving point. अब वही ये बात है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, ये भी यही हो गया, एक फिगर बनती है सेट ऑफ ऑल पॉइंट। टुगेदर वी हैव टू ट्रीट ऑफ ऑल पॉइंट, बट अंडर द वन फिक्स्ड कंडीशन और टू फिक्स्ड कंडीशंस। व्हाट इज हियर कंडीशन? इन ए प्लेन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस from the two fixed point is a constant. Of sum of the distances from the two fixed point f1 and f2, fixed point f1 f2 in a plane, same plane. So 2 points, fixed point f1 f2 are called the focus of this figure is called ellipse. So what is the figure of ellipse? The set of all points in a plane, the distances whose the sum of whose distances, जिनकी distances का sum from the two fixed point f1 f2 is constant, that is called 2a here. Fixed that 2a to make the standard for. So then here you see in this figure, this is called an ellipse. Is called an ellipse. So here the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant 2a, small a, is called an ellipse. So this figure ellipse. So in this figure, focus, fixed point f1 f2 are called focus, and distances of the point p1 का distance
P1F1 plus P1F2. P1F1 plus P1F2, we can say P1F1 plus P1F2. ये कितना होगा? इज इक्वल टू कांस्टेंट 2a इसको कहा गया, और ये किसके इक्वल होगा? सेम P2, अब सेकेंड पॉइंट, P2 से F1 की डिस्टेंस प्लस P2 से F2 की डिस्टेंस PF2 कांस्टेंट रहनी है, हमेशा सेम रहनी है डिस्टेंसेस, तो दैट इज कॉल्ड 2a। तो एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ओके, बहुत सारे पॉइंट है, P1, P2, P3 एंड सो ऑन। So these point here A with B. Point A की डिस्टेंस भी AF1 and AF2 प्लस किया AF1 plus AF2, क्लियर, फिक्स्ड। ओके, now we have to discuss here forward something under this definition. Okay, what major axis? What is the major axis of the ellipse? Major means बड़ा एक्सिस, सबसे बड़ा एक्सिस है ए बी। ए बी देखो ये लार्ज है, और ये अगर हम इस पर पी क्यू लें, पी क्यू, दिस इज मैक्सिमम इन द वाई एक्सिस, एंड ए बी इज द मैक्सिमम डिस्टेंस हियर ऑन एक्स एक्सिस। तो ए बी इज कॉल्ड द major axis of the ellipse, PQ is called the minor axis, and distance minor axis 2B. Minor axis is called 2B, major axis AB is called 2A. Okay, and then distance between F1 and F2 is called 2C. फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2C। तो O is the center, O is the center of the ellipse। सेंटर है तो इसका मतलब क्या हो गया? AO is equal to OB, means is equal to A, because AB is equal to 2A, then half of AB is AO. O is the center of AB or center of the ellipse, so that is called AO is A, and PO also is B, and OQ also B. PQ is 2B. So O is the center of perpendicular PQ, and O is the center of horizontal AB. Horizontal AB is called the major axis, vertical is called the minor axis, that is 2B, and distance between both the fixed point focus both is called 2C. These are the fixed here constant distances for the every ellipse. So now, under this certain condition which I told, what the sum of whose distances, set of all points, the sum of whose distances from the two fixed point F1, F2 in a plane is called an ellipse, and major axis, minor axis, and the center, okay, and vertex A and B are called the vertex. So vertex also you can write vertex। if major axis is x axis, तो वर्टेक्स कौन सा है? पॉइंट ए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ओके, तो हम ये कह सकते हैं प्लस माइनस, उधर प्लस है इधर माइनस है। ओके, तो प्लस माइनस वर्टेक्स, प्लस माइनस ए कोमा 0, दिस इज वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। ओके, A, point B. Okay, two vertices, clear?
तो vertices we can say A and B. After that we have to make the relationship between A, B, C. Okay, between minor axis and the major axis relation we have to make. How can make this? You see here, एक पॉइंट लिया हमने कोई F1 से कोई पॉइंट, फिर F2 से सेम पॉइंट, तो F1B plus F2B. Okay, now see in the figure. Okay, what F1 वन पॉइंट है, फोकस पॉइंट, फिक्स पॉइंट, F1 से कहां तक डिस्टेंस, F1B. ओके, प्लस F1 F2 से B. ओके, F2B. ये आपका एक पॉइंट कहां तक लिया हमने, बी पॉइंट तक. बी पॉइंट इलिप्स पर है. F1B प्लस F2B इज इक्वल टू कांस्टेंट 2A. ओके, इज इक्वल टू, वी कैन राइट what we can write, F1B, we can write F1O plus F1O plus OB FB. O से ब्रेक कर लिया F1B को, F1B F1O प्लस OB. ठीक है, प्लस F2B को भी O की हेल्प से किया, OB माइनस OF2. OB इसका प्रूफ हो गए, OB माइनस, देखो OB माइनस OF2. ओके, नाउ LHS लिया हमने इसका, ये LHS सॉल्व कर रहे हैं हम. तो F1O कितना है, अब टोटल F1 F2 है 2C, O इज सेंटर, तो F1O इज इक्वल टू C. ओके, F1O इज इक्वल टू C. ओके, तो देन F1O इज C plus OB. O is the center of the full major axis, so it is OB is A plus OB is A minus OF2. OF2 is the C, and F2O and F1O both are equal because center है O, तो both are equal to C because total is 2C. F1 F2 distance is 2C, focal distance. So this is C. Then simplify, minus C plus C cancel, then equal to 2A. Okay, this RHS done. Clear? Okay, now after this what we have to do, relation between A and B. Okay, after this relation between A and B, so now take point P, any point P, this on the ellipse, so PF1 and PF2, PF1 and PF2. Now relation between A and B, देखो F1 से हमारा P तक
distance and plus F1P plus F2P is equal to 2A definition. Okay, by definition, sum of the distances from F1 and F2 always 2A. So F1P plus F2P is equal to 2A. So now F1P how can find? By Pythagoras theorem we can find F1P will be equal to this B and this is C. So B square plus C square, square root B square plus C square. See this by Pythagoras theorem in triangle OPF1. F1O whole square plus OP whole square is equal to F1P square. Then F1P is equal to square root sum of the square of F1O and OP. F1O is C, OP is B, so B square plus C square plus F2P. F2P also same, B and C, so same, square root B square plus C square. Okay, is equal to 2A. Okay, after that, this same both these, the square root this plus square root same, so twice of square root of this, twice of square root B square plus C square is equal to 2A. हाँ जी, then squaring both side, 2 से 2 cancel, squaring both side, then B square plus C square, square root हट गया, whole square is equal to A square. So this is the relation between A, B, C for the ellipse. Important relation between A, B, C. A square is equal to B square plus C square. 2B, 2A and 2C. Fixed. So this relation we have to use in A, B, C. Okay? For the ellipse. Okay. Clear? Next point. Yes बेटा, forward many things are there in the ellipse. एक तो हो गया मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर ऑफ द एलिप्स, वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, फोकस, क्लियर हो गए. ओके, अब एक पॉइंट है इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ई. व्हाट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स? एक रेशो है ये भी. किस किस का रेशो? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द फोकस and distance from center to the one vertex. यानी सेंटर से फोकस C हो गया, रेशो है, यानी डिवाइड बाय सेंटर से वर्टेक्स A हो गया, तो C अपॉन A. ओके, तो द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स इज द रेशो. क्या है? रेशो है, रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस. कैसी डिस्टेंसेस? कहां से? फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, सेंटर से वन फोकस तक, टू द वन फोकस, एंड फ्रॉम सेंटर टू द वन वर्टेक्स. तो सेंटर टू द फोकस एंड सेंटर टू द वर्टेक्स, इट इज डिनोटेड बाय ई. तो रेशो मीन्स डिवाइड. ठीक है? ओके, इट इज ए रेशो. तो C अपॉन A and it is less than 1. Why? Because always A is here greater than C. Always मेजर एक्सिस 2A है, ये 2C के अंदर है. ठीक है? तो मीन्स
OB is greater than OF2. OB is A, OF2 C. तो A is greater than C. जब ग्रेटर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, ऊपर छोटा नंबर है, जैसे ऊपर 3 हो नीचे 5 हो, तो दिस इज लेस देन 1. लेट अस सपोज, ओके, लाइक दिस. तो मीन्स ऑलवेज लेस देन 1. इसेंट्रिसिटी क्लियर, डिस्टेंस है क्लियर, रेशो है, कोई यूनिट नहीं होती. डन, क्लियर, ओके. आफ्टर दिस इसेंट्रिसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल e, eccentricity. After that, equation of the ellipse. How can find the equation of an ellipse? Proof of the equation. क्या बनेगा? देखो, एक कोई पॉइंट P ले लिया, जनरल पॉइंट. Let P on the path of the ellipse passing through the point P, जनरल पॉइंट. जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं P1, P2, P3, उनमें एक जनरल मान लिया x, y. ओके, इसी प्लेन में है, ठीक. अब उसके डिस्टेंस का डेफिनेशन कि F1 से फोकस से P, यानी PF1 प्लस PF2, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a बाय डेफिनेशन. क्लियर, ये डेफिनेशन आपकी एलिप्स की कि सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट 2a. डन. नाउ pf1 डिस्टेंस फार्मूला, p पॉइंट कोऑर्डिनेट xy, f1 के -c, 0. तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x माइनस माइनस c, तो x माइनस माइनस प्लस हो गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर रूट. दिस डिस्टेंस हो गया pf1 प्लस pf2, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट. तो x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर, देन y स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2a. ओके बेटा, ये टर्म उधर ले जाओ, यहां रखो ये टर्म, स्क्वायर रूट x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2a. या डायरेक्ट होल स्क्वायर कर लो. ओके, चलो कोई नहीं, इसको उधर ले जाओ, माइनस ये टर्म, ये नेगेटिव हो गया, x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. दिस शिफ्ट दैट साइड, दिस टर्म राइट हैंड में. अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए दिस होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो x होल स्क्वायर ही लिख लोगी. ओके, x स्क्वायर, सॉरी, x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
स्क्वायर रूट हट गया, x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4a into square root this 2a into b, so 2 into 2a into that, 2 to the 4a into this is x minus c whole square plus y square. Okay beta, squaring both sides, simplify. How can simplify? देखो ध्यान से, y स्क्वायर कैंसिल, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आफ्टर सॉल्विंग व्हाट विल कम, ठीक, चेक करो, x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2xc, ओके, होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2xc, होल स्क्वायर हो गया, एंड माइनस सिंप्लीफाई दिस 4a, ओके, माइनस 4a into स्क्वायर रूट x माइनस c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ठीक है, डन। अब ध्यान देंगे ये इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोनों साइड है, ये माइनस की टर्म इधर ले लो, ये टर्म इधर ले लो, ठीक है, ये ले लो, आपका माइनस उधर रख लो, ये इधर ले आओ, तो ये बन गया 4xc, ये इधर आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, दिस 4, ये 4a स्क्वायर फिनिश, दिस इधर रहा, और ये माइनस, तो ये इधर ले लो माइनस, ये माइनस में ले लो इधर, एंड इक्वल टू उधर माइनस 4a इंटू स्क्वायर रूट x माइनस c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंप्लीफाई, ठीक है बेटा, 4 से डिवाइड, 4 4 कैंसिल, क्लियर, नाउ डिवाइड बाई a, तो क्या बनेगा, xc डिवाइड बाई a माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई a, तो a इज इक्वल टू डिवाइड बाई a, दिस हेयर स्क्वायर रूट सिंगल टर्म माइनस स्क्वायर रूट x माइनस c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, फॉरवर्ड, वी आर गोइंग फॉरवर्ड, ओके, सिंप्लीफाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट विल कम, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहीं देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये दो टर्म है, होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर
एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, दिस minus 2ab minus 2 this into this, a cancel, 2xc because xc upon a into a cancel, a square plus b square minus 2ab is equal to whole square of this means root cancel, so then x minus c whole square, x minus c whole square प्लस वाई स्क्वायर रूट फिनिश हो गया, ठीक है, पूरे होल स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर रूट हट गया, तो देन सिंप्लीफाई दिस फॉरवर्ड, देन व्हाट विल कम, सॉल्विंग, देखो ध्यान से, तो ये आपका एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xc इज इक्वल टू होल स्क्वायर एक्स माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दें, ये बन गया आपका, ओके, तो माइनस टू एक्स सी कैंसिल, तो व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर यहां भी है, ओके, सी स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इधर ले आओ, देन दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर, ये इधर ला के कॉमन ले लो इसमें से, देखो डिवाइड बाई बी स्क्वायर, एक रिलेशन हमारे पास है, कौन सा रिलेशन है उसका यूज करेंगे, क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, अब सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तो देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट हो गई है, ठीक है, एंड ये इधर ले लो, माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर दिस एंड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके, देन अब इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म सॉल्व कर लो दोनों, तो ये और ये, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हियर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये यहां पर बच गया, और माइनस 1, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में, ठीक है, एंड देन ये कांस्टेंट उधर ले जाओ, ओके, माइनस वाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट उधर ले जाओ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ठीक है, ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन, ये -1 हो गया, ये टर्म उधर चली गई, ओके, ये -y स्क्वायर, डन। आफ्टर दैट सिंप्लीफाई, डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पहले और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर अंदर सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एलसीएम, ठीक है, दिस एंड देन माइनस वाई स्क्वायर is equal to a square minus b square. Okay, then this a square cancel, then it is x square upon a square into minus b square. This and minus y square is equal to a square minus b square. अब ये b स्क्वायर इसके साथ कर दे हम यहाँ पर। अब हमें यहाँ लेना है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो बी स्क्वायर से डिवाइड करो, इफ बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं क्या बनता है, माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड बाई माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, इस टर्म माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो क्या बन गया, ये कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल, देन माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, ओके, ये 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फिनिश होना चाहिए, यहाँ पर ये बी स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू, सी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, ओके, डन, ओके, दिस इज नेग्लेक्ट हो गया, स्क्वायर है, नेगेटिव हो रहा है तो बहुत कम होगा ये, तो इसलिए लेस, बहुत कम डिफरेंस होगा, तो इसलिए इट इज 1, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, this is your equation, neglect it, okay, that is 1. So like this we can simplify, we can do this, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This is the equation of the standard ellipse along x axis, okay, then along y axis y square upon a square plus x square upon b square is equal to 1.
these two equation, standard equation of the ellipse. Okay, next point, question only. Hello beta, exercise question number 1, exercise 10.3. okay, x square upon 36 plus y square upon 16 is equal to 1. तो ये किस टाइप का हो गया, along x axis. तो कंपेयर किया तो a square is equal to 36. yes yes, and b square is equal to 16. okay, so we can solve. yes beta, now कंपेयर किया, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर 16 इक्वल टू 1. बाय कंपेयरिंग दिस, सो ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 4. ओके, एंड thus focus, so focus along x axis हो गए. तो x axis means a plus minus 6, 0. ओके, फोकस पहला पॉइंट. वर्टेक्स क्या हो गया, फोकस होगा प्लस माइनस सी एंड सी फाइंड करो. ओके, ये वर्टेक्स होगा प्लस माइनस ए मीन्स 6, तो प्लस माइनस a, 0. ये वर्टेक्स हो गया. तो वर्टेक्स तो हो गया प्लस माइनस 6, 0. ओके, देन सी फाइंड करो पहले. सी स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो ए स्क्वायर हमारा कितना है 36 माइनस बी स्क्वायर 16, 36 माइनस 16 20, सी स्क्वायर इज 20. ओके, तो सी इज इक्वल टू फोकस प्लस माइनस सी होगा तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20, 2√5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2√5. सो ये यहाँ पुट किया तो ये बन गया प्लस माइनस 2√5 फोकस सी, 0 एक्स एक्सिस पर है. ठीक है बेटा, एलोंग एक्स एक्सिस हो गया, प्लस माइनस दिस हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया. ओके, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ओके, इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी ई रेशो है सी कितना अपना 2√5 सी डिवाइड बाई ए कितना है 6 प्लस माइनस 6. डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेनी है, 6 डिस्टेंसेज है. ठीक है, तो दिस इज 2 3 जा 6, देन √5 अपॉन 3, 2 से डिवाइड होकर. दिस इज योर इसेंट्रिसिटी ई. ओके, then we can find latus rectum. L is equal to 2b square upon a. Latus rectum b square 16, 2 into 16 b square, then upon a is 6, so 2 3 जा 6, तो 16 upon 3. This is latus rectum. And then major axis, minor axis also. तो major axis 2a, so 2 into 6
12 major axis and minor axis 2b is equal to 2 into b is 4. 4 2 ja 8. These are the major axis and minor axis. So these information completed. Similarly, this question 2. ये along y axis. Because here जिसके नंबर बड़ा नंबर जो है वो a होता है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये अलोंग वाई एक्सिस हो गया। तो इसमें आपको क्लियर है वही ए स्क्वायर कंपेयर किया इज इक्वल टू 25। तो दिस इंप्लाइज a is equal to 5. Okay, clear? 5 5 are 25. Then b square is equal to 4. Then this implies b is equal to square root 4 2. This b. Then after that you can write c value. So c square is equal to a square minus b square. Using this, okay, then c square is equal to a square is a square 25 minus b square 4 then 21. तो रूट 21 c की वैल्यू प्लस माइनस रूट 21। फोकस सो फोकस आपका क्या बन गया प्लस माइनस सी। तो प्लस माइनस रूट 21 फोकस फोकाई टू फोकस एक्स एक्सिस पर। यह आंसर हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या हो गया वर्टेक्स भी उसी पर है प्लस माइनस ए फॉर्मूला कोमा 0 एक्स एक्सिस पर। दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इज योर 5 तो प्लस माइनस 5 कोमा 0। दिस इज वर्टिसेस दो वर्टिसेस है। ओके नेक्स्ट फोकस हो गया वर्टिसेस हो गया इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। रेशो ए डिस्टेंसेस है सी पॉजिटिव होगा तो 21 रूट 21 अपॉन ए इज योर 5। दिस इज इसेंट्रिसिटी। नाउ लेटस रेक्टम L ट्वाइस b square upon a. तो दिस इज ट्वाइस b square b में स्क्वायर b square इज इक्वल टू 4 तो 2 into 4 upon a is 5 8 upon 5 8 upon 5 this is the latus rectum L. Now major axis okay major axis is equal to 2a is equal to 2 into a is 5 तो 2 5 जा 10 तो मेजर एक्सिस हो गया 10 एंड माइनर एक्सिस ओके माइनर एक्सिस is 2b and 2b is equal to 2 into b b is 2 तो 2 into 2 is equal to 4 so these are minor and major axis done answer okay like share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact और उनको सबको भेजो जो आपके कांटेक्ट में 10th 11th 12th के बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं and guide them subscribe the channel and send the video to the forward
their friends, okay, and guide them, subscribe the channel, then you will get the link. Thank you.